Welcome to Wheeler. This is session number 6 of C++. In the session number 6, we are going to discuss about array and the pointer. What is the array? Initializing the array, access to the value of an array, multi-dimension array, and array as a parameter. Now, firstly, we discuss about the arrays. What is the array? Array is the collection of similar types of the element. These similar element could be all integer or all float or all character. Okay. मीन्स क्या कर सकते हैं हम डिफरेंट एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं कि हम वी कैन कलेक्ट इनटू द एरे ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ द एलिमेंट. This element are the integer element, this element are the float element, as well as these elements are as the character element, but all the element are the nature is the same. This is called the array. Array must be declared before they can be used in the program. Standard array declaration is as follow. That means you must be declare the array before using into the program. Then how we can declare the array? Basically क्या the array has two types. First one is the single dimension array, second one is the double dimension array. Now this is the declaration of the array. First we provide the data type of the array, second we provide the name of the array, and third we provide the variable of the number of the element into the array. Okay, just see here, this is the types of the element, integer type, and a is the name of the array, means a is the integer name or pointer. ओके मीन्स इसके थ्रू कर सकते हैं हम एरे को पॉइंट कर सकते हैं. एंड द 5 इज द साइज ऑफ द एलिमेंट, मीन्स यू कैन स्टोर द 5 एलिमेंट इनटू द एरे ए. दिस इज नोन एज द सिंगल डायमेंशन एरे. ओके जस्ट सी द एग्जांपल. हियर वी जस्ट डिक्लेयर द एरे int my array and the size provided into the array is the 5 and is equal to, in curly braces we provide the number of element into the array, means हमारे पास एरे में कितनी वैल्यू अवेलेबल है 1 2 3 4 5. दिस इज द एलिमेंट ऑफ द एरे. ओके फॉर int I less than 0 and I plus plus print of the array of I. ओके मीन्स क्या कर सकते हैं हम किसी भी एरे को किसी भी कंडीशन पे क्या कर सकते हैं, इजिली बाय यूजिंग द लूप वी कैन एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम द एरे. ओके नाउ दिस इज द प्रोग्राम टू गिव 5 सम यूजिंग एरे. ओके मीन्स क्या किया मैंने 5 एलिमेंट का सम किया. फर्स्टली वी डिक्लेयर द एरे ऑफ द 5 एलिमेंट, देन इंटर द एलिमेंट ऑफ द एरे. मीन्स मैंने क्या किया, लूप के थ्रू सारे एलिमेंट्स को क्या किया, ऐड किया. कहाँ पर ऐड किया, किस लोकेशन पे, एरे के इंडेक्स पे. नाउ द एलिमेंट और ये मैंने एरे के एलिमेंट को मैंने क्या किया, डिस्प्ले किया. ओके देन द डबल डायमेंशन एरे. व्हाट इज द डबल डायमेंशन एरे? डबल डायमेंशन एरे मीन्स द एरे विद द रो वैल्यू एज वेल एज द column value. Row means the value of row is the 3 and the value of column is the 3. okay int array 3 3 मीन्स हमारे पास जो भी वैल्यू एरे है इसमें क्या करते हैं 3 3 क्रॉस के मल्टीपल में क्या कर रहे हैं, वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं. जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, दिस इज द रो ऑफ द एरे. ओके दिस इज द रो ऑफ द एरे 5 10 15 एंड दिस इज द कॉलम ऑफ द एरे 5 20 एंड 35. ओके नाउ it means the 3 row and the 3 column to the array. Do it yourself. Just input the element 5 array into the a cross b, print the addition and into the third array c. okay and second one is the give any 10 number using array, print the highest and the smallest number. and array is a collection of the different elements. अब क्या इसे एक्सरसाइज है, अब एक्सरसाइज को आप यूज करिए अपने तरीके से, कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस. अब हम देखते हैं कि कैसे हम एरे को डिक्लेयर करेंगे, कैसे द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे इसको हम ट्रीट करेंगे. जस्ट ओपन द एडिटर. नाउ यहाँ पर मैंने को क्या किया, एडिटर को ओपन किया. एडिटर ओपन करने के बाद नाउ वी जस्ट डिक्लेयर द फाइल iostream.h and conio.h. now firstly we declare the main file and then we just declare the type of the array, integer type, name of the array, and in the angular bracket we just provide the साइज ऑफ द एरे. मीन्स यहाँ पर मैंने साइज प्रोवाइड किया, हमारी साइज कितनी थी 5. मीन्स यू कैन स्टोर द 5 एलिमेंट ऑफ द इंटीजर टाइप. ओके दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ
डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ओके, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं कि एरे को इनिशियलाइज करें। एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास बेसिक कंडीशन क्या होती है कि हम एरे हमारा बेसिकली क्या करता है कि इंडेक्स बिहाफ पे काम करता है, मीन्स इंडेक्स बेस्ड पे वर्क करता है। कि इंडेक्स बेस्ड पे वर्क करने के लिए हमारे पास एरे में क्या होता है कि हम एरे की एक बेसिक लोकेशन बताते हैं। जस्ट सी जैसे सपोज करिए ये हमारे पास एरे, ये हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं and both elements are provided into the ओके मीन्स हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, हमारे पास वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कि हमारे पास ये एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट में हमारे पास क्या वैल्यू हो रही है, इसके बाद फर्दर क्या वैल्यू आ रही है, मीन्स ये 0 1 2 3 4 5 6। ओके, दिस इज द नॉन treated as the value of array and this is known as index of array। ओके, मीन्स हम क्या करते हैं, इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि जब एरे स्टार्ट करते हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन पे हम इंडेक्स एरे का इंडेक्स क्या करते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, और जो हमारी वैल्यू होती है वैल्यू हम किसी कोई भी वैल्यू एरे में स्टोर कर सकते हैं। मीन्स द एरे स्टार्टिंग इंडेक्स इज द 0 एंड द एंडिंग लास्ट इंडेक्स इज द n-n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू द एरे, या और वी कैन सेट दैट द साइज ऑफ द एरे। ओके, नाउ अब देखते हैं, ये मैंने डिक्लेयर किया, मीन्स हमारे पास जो एरे का इस पर्टिकुलर एरे का इंडेक्स है वो हमारा 0 to 4। okay, now we just declare the two temporary variable। now we can declare the array as well as at the declaration time you can also initialize the array। so how we can initialize, this is the declaration of array and this is the five element provided by the into the curly braces provide, okay, means 5 एलिमेंट। नाउ अब मैंने क्या किया, सेकंड एरे मैंने क्रिएट किया, सेकंड एरे मैंने 5 लेंथ दिया कि हमारे जो भी एरे उस एरे की लेंथ कितनी होगी 5 लेंथ के बाद वी जस्ट प्रोवाइड द 5 एलिमेंट ऑफ द एरे। नाउ व्हाट हैपन इफ यू प्रोवाइड द मोर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू, लेस देन वैल्यू और ग्रेटर, means suppose the number of value required to array 1 is the 5 and if you provide the value of array 1 is 3, तो what happen, there is the nothing thing। means कैसे कि means क्या करेगा, जब array के फर्स्ट लोकेशन पे इसने इंस्टॉल किया, 0th लोकेशन पे 12, फर्स्ट लोकेशन पे 34 एंड द सेकंड लोकेशन पे 56, मीन्स एरे के थर्ड ब्लॉक फुल हो चुकी हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द 2 ब्लॉक इज एम्प्टी। ओके, मीन्स अब यहाँ पर देर इज द नो प्रॉब्लम, just see there is no problem। okay, now just show the output, if you provide the higher value means you provide the more one value। okay, just see the output is the one error। what is the error is the too many initializer, means array में क्या कर रहे हैं, हमारे पास array की लेंथ क्या है 5 और we just initialize the number of value is the 6, means we just initialize the greater more value to the number of free blocks, means array में free block हमारे पास 5 है और अब क्या कर रहे हैं, array में आप more value initialize कर रहे हैं। ओके, लेकिन आप ये चाहते हैं कि नहीं, हमारे पास जितने नंबर ऑफ वैल्यू मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप इसको ट्रीट करो कि नंबर ऑफ एलिमेंट की साइज भी यही होगी। ओके, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट एम्प्टी द साइज ऑफ द एलिमेंट, साइज ऑफ द एरे। मैंने यहाँ पर बताया कि नहीं, मुझे आपकी साइज एरे की साइज नहीं बतानी है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर एरे में हमारे पास इतने एलिमेंट को स्टोर करना है, तो व्हाट इज़ द एरे साइज, यू जस्ट डिफाइन इटसेल्फ। मीन्स मैंने क्या करेगा, जब भी कंपाइलर रन करेगा तो ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेगा कि इस पर्टिकुलर एरे की साइज क्या है ऑन द बिहाफ ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोवाइडेड इनटू द एरे। मीन्स एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट के बिहाफ पे से चेक कर लेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं और उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट के बिहाफ पे इस पर्टिकुलर एरे की साइज क्या होगी। ओके, just see the output, there is a no error। okay, now then we just display the array for I is equal to 0, I less than 6
एंड देन आई प्लस प्लस। ओके, अब मैंने यहाँ पर 6 डिफाइन किया, सी आउट ओके। मीन्स मैंने क्या किया, ये मैंने एक मैसेज दिया कि वैल्यू ऑफ द एरे एट ith पोजीशन पे वैल्यू क्या होगी ये। ओके, इसके थ्रू कर सकते हैं हम वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे कि हमारे पास कैसे वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, इज इक्वल टू एरे। नाउ just get ch, okay, and then control F9, just to the output value of array just to the output. Okay, value of array at first location 12, second location 34, थर्ड लोकेशन। मीन्स वैल्यू ऑफ जो भी मैंने एरे की वैल्यू बताई उस पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास एलिमेंट क्या हो जाएगा, एरे में स्टोर हो जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन ऑफ द एरे एज वेल एज दिस एलिमेंट इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन एंड डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ओके, मीन्स हमने क्या किया, वेरिएबल एरे को डिक्लेयर किया एज वेल एज वी कैन ऑल्सो इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ द एरे। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं कि दिस डिक्लेरेशन इज एट द रन टाइम, सॉरी दिस डिक्लेरेशन इज एट द कंपाइल टाइम। मीन्स हमने क्या किया, कंपाइल टाइम पे मैंने क्या किया, वैल्यू को डिक्लेयर भी किया, एरे डिक्लेयर भी किया और उसी टाइम पे वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। मीन्स जितने भी टाइम्स हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे हर टाइम पे क्या होगा, हमारी वैल्यू सेम वैल्यू प्रोड्यूस करोगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू हमारी क्या है, फिक्स है एज ए कंपाइलेशन टाइम। नाउ अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू हमारी कंपाइलेशन टाइम की है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको वैल्यू को रन टाइम प्रोवाइड करते हैं। this value provided at the runtime. Okay, just output ओके। मीन्स मैंने मैसेज दिया और इस मैसेज के बाद मैंने यूजर से मैंने मैसेज गेट किया सी इन एरे ऑफ आई। ओके, इसके थ्रू क्या करें, हमारे पास जो भी यूजर होगा वो यूजर क्या करेगा, एलिमेंट को इंटर कर देगा। एंड नाउ जस्ट सी द ऑल्ट ए, ओके। अब यहाँ पर क्या किया मैंने 5, ओके, ये हमारे पास फर्स्ट एरे था और इसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड एरे। अब सी आउट रन टाइम्स पे क्या वैल्यू थी और पर्टिकुलर एरे की वैल्यू हमारी कंपाइल टाइम पे क्या थी।
मीन्स हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू किया, मैंने रन टाइम पे वैल्यू डिफाइन किया और एज वेल एज द कंपाइलेशन टाइम पे डिफाइन किया. नाउ फर्स्ट वैल्यू 23, 55, 70, 68 एंड 45. ओके, रन टाइम वैल्यू हमारे पास क्या थी, फर्स्ट एरे की थी, और द कंपाइलर टाइम वैल्यू हमारे पास सेकंड एरे की थी, जो भी वैल्यू हमने इसको एंटर किया था. ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एरे रन टाइम डिक्लेरेशन एज वेल एज द कंपाइल टाइम डिक्लेरेशन. मीन्स हमारे को रन टाइम डिक्लेयर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, और अगर हमारे को कंपाइल टाइम पर डिक्लेयर करते हैं तो उस कंडीशन पे हमारे पास क्या वैल्यू जनरेट होती है एट द टाइम ऑफ द एरे. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर एरे को, ये तो हमारे पास सिंगल डायमेंशन एरे था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डबल डायमेंशन एरे. जस्ट सी द ओके, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द एरे. मैंने क्या किया, एरे को डिक्लेयर किया, इस कंडीशन मैंने एरे हमारा डिक्लेयर हो चुका. ओके, नाउ अब क्या करते हैं, हम एरे को एज वेल एज डिक्लेयर एंड वी जस्ट प्रोवाइड द वैल्यू. Okay, first we provide the first row value. Okay, now and in the second row we just provide the second row value. This is the basically declaration and initialization of the double dimension array. Now for the accessing double dimension array we just use the nested loop. And then for j is equal to 4, j is less than 0, j is less than 4, j plus plus. ओके, मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू को डिस्प्ले किया. ये हमारे पास जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास जो भी आउटपुट आया वो हमारा क्या होगा, एंड. ओके, अब हम देखते हैं कि हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं एंड जस्ट सी द आउटपुट. जीरो एरर, जीरो वार्निंग. नाउ वी जस्ट कंपाइल द प्रोग्राम. What is the output? Okay, just here place some space between the numbers. Now just so there is the 2 row and 4 column because that we declared the double dimension array into the 2 row as well as the 4 कॉलम. इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी डेटा को कैसे भी किसी भी रिलेशन पर क्या कर सकते हैं, इजीली डिक्लेयर कर सकते हैं, इजीली उसको राइट कर सकते हैं इनटू द एरे. ओके, दिस इज द मैकेनिज्म इज कॉल्ड द डबल डायमेंशन एरे डिक्लेरेशन एज वेल एज द डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन. दिस डिक्लेरेशन इज द रन टाइम compile time. You can also convert these program into the runtime declaration. Okay, how we can convert, just convert into the
cin function and call cin function and store the value into the I and j location. So now we can initialize the array with the runtime value. Okay, this is the basic mechanism for the calling the array, calling the variable into the array. Okay, this is the basic concept for accessing, for declaring single dimension array, double dimension array, as well as the different runtime array and the compile time array. Okay, thank you.